بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نیوکلیر پروگرام پر ایران کے دعووں اور عمل میں تضاد ہے۔ جنرل اسمبلی سے شاہ سلمان کا خطاب، کہا یمن میں مستقل امن چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایرانی ترجمان نے کیا اقرار، ویانا بات چیت جلد شروع کرنے کا اشارہ۔ حوثیوں کے ڈرونز اور کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا، سعودی اتحاد نے کیا دعویٰ۔ ایران سے مزید فیول ٹینکرز لبنان پہنچے، عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی۔ مودی واشنگٹن پہنچے، انڈین کمیونٹی نے کیا زبردست استقبال، جمعے کو بائیڈن سے ملاقات، کوآڈ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ نیو یارک میں G4 ملکوں کی میٹنگ، سیکیورٹی کونسل میں سدھار پر دیا زور۔ فرانس اور امریکہ نے کیا تناؤ دور کرنے سے اتفاق، میکرون کی بائیڈن سے 30 منٹ بات چیت۔ انڈیا میں 32,000 نئے کووڈ کیس، فیسٹیول سیزن سے پہلے حکومت نے الرٹ جاری کیا۔ شوپیان انکاؤنٹر میں ملیٹنٹ ہلاک، اڑی میں 3 دراندازوں کو ڈھیر کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اندیشوں کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یمن میں مستقل امن قائم ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ شاہ سلمان کی یہ تقریر پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے انتہا پسند نظریات کا مقابلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا اور کہا کہ نفرت اور دہشت پھیلانے والوں کے خلاف لڑائی جاری رہنی چاہیے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے تعلق سے دعووں اور عمل میں تضاد ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ بات چیت کی امید ظاہر کی اور کہا کہ شروعاتی بات چیت ٹھوس رہی تو نتیجوں کا راستہ کھلے گا اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ بات چیت سے عالمی قانون پر عمل، خود مختاری کا احترام اور دہشت گردوں کی تائید ختم ہونے کے راستے کھلیں گے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب یونائیٹڈ نیشنز کا بانی رکن ہے اور ہم یونائیٹڈ نیشنز کے اصولوں کے پابند ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کا مقصد عالمی امن، استحکام، تنازعات کا پرامن حل، خود مختاری کا احترام اور دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا ہے۔
शाह सलमान ने कहा कि मिडल ईस्ट को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से पाक रखना सऊदी अरब की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने की आलमी कोशिशों की तायीद करते रहेंगे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत रुकी हुई है। शाह सलमान ने कहा कि ईरान एक तरफ कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है और जंग के लिए नहीं है, लेकिन वो ऐसे कदम उठाता है जिनसे तजाद झलकता है। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ने पिछले साल यमन में अमन के लिए पहल की थी। इस मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हूसी तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हूसियों के लिए ईरान की तायीद का इल्ज़ाम दोहराया। शाह सलमान ने वबा से निमटने, इंतहा पसंदी और माहौलियाती तब्दीली के मसाइल हल करने की सऊदी कोशिशों का भी जिक्र किया। खबरों में कहा गया कि न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के मौके पर ईरान और सऊदी अरब के ओहदेदारों की मुलाकात हुई। इन मीटिंग्स में ईरान और सऊदी अरब के अलावा तुर्की, कतर, इजिप्ट, कुवैत, जॉर्डन और फ़लस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर्स शरीक थे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के साथ हालिया महीनों में मुसलसल राब्ते में रहा है और दोनों मुल्कों में आपसी मामलात पर अच्छी बातचीत हुई है। यूएन जनरल असेंबली के मौके पर इरना न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए खतीबजादा ने कहा कि ईरान ने सऊदी अरब के साथ पिछले कुछ महीनों में बगदाद में कई दौर की बातचीत की है। खलीज फारस की सिक्योरिटी के ताल्लुक से बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब खित्ते में मसाइल हल करने के ताल्लुक से ईरान के प्याम पर संजीदगी से तवज्जो देता है तो हल निकाले जा सकते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि G4+1 के साथ बातचीत के नतीजे में ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटनी चाहिए। रईसी ने जुमेरात की रात जनरल असेंबली से खिताब किया था। ईरान और सऊदी अरब मिडल ईस्ट के दो अहम मुल्क हैं और उनके दरमियान पिछले 40 सालों से खित्ते और मुस्लिम दुनिया में दबदबे के लिए कशमकश जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि दुनिया को अमेरिका की ज़ालिमाना पाबंदियों का मुकाबला करना चाहिए और ईरान के खिलाफ मौशी दहशतगर्दी की मुखालफत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूएन जनरल असेंबली के मौके पर एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत जल्द शुरू करेगा। सऊदी अरब में कौमी दिन मनाया गया। इस मौके पर सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कई आलमी लीडर्स ने मुबारकबाद दी। ये सऊदी अरब का 91वां कौमी दिन था। इस मौके पर कई प्रोग्राम्स रखे गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडन से वाशिंगटन में जुमे को मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वो अफगानिस्तान की सूरत हाल और दूसरे मसाइल पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा मोदी क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड ग्रुप में अमरीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। वज़ीर आज़म मोदी बाइडन की दावत पर अमरीका का दौरा कर रहे हैं। वो यूएन जनरल असेंबली से भी खिताब करेंगे। जुमेरात को मोदी ने अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कई आलमी मामलात और आपसी दिलचस्पी के मसाइल पर बात की। कमला हैरिस की माँ का ताल्लुक इंडिया से है। वो पहली इंडियन अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन और खातून वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। मोदी 4 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। बारिश के बावजूद सैकड़ों इंडियन कम्युनिटी अरकान एयरपोर्ट पर मोदी के इस्तकबाल के लिए जमा थे। मोदी ने उनके गर्मजोशाना इस्तकबाल के लिए इंडियन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले इंडियंस और इंडियन कम्युनिटी हमारी ताकत हैं। मोदी ने जुमेरात को कमला हैरिस से मुलाकात के अलावा कई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और सीईओ से भी मुलाकातें की। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकातें की। ये मुलाकातें पहली क्वाड समिट के मौके पर हुई। क्वाड ग्रुप को चाइना के खिलाफ एक इत्तेहाद समझा जाता है। मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। G7 मुल्कों की एक मीटिंग में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर दिया गया ताकि उसे और ज़्यादा जायज़, असरदार और नुमाइंदा बनाया जा सके। इस ग्रुप में इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इन मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग यूएन जनरल असेंबली के मौके पर हुई। इस दौरान जयशंकर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना हो गए और वज़ीर आज़म की क़यादत में दौरा करने वाले डेलीगेशन में शामिल हुए। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। 560 से ज़्यादा इसराइली आबादकार मस्जिद अक़सा में आदम के उन्हें पुलिस की हिफाजत हासिल थी। बताया गया कि यहूदियों के एक मजहबी त्यौहार के मौके पर ये दौरा किया गया और तलमूदी तरीके से इबादत की गई। इस तरह के वाक़यात वक्फे से पेश आ रहे हैं, जिससे क़ुद्स में तनाव बढ़ रहा है।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीन मसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एर्दोगान ने इसराइल से कहा कि वो फ़लस्तीनियों पर ज़्यादतियाँ बंद करे और उन्हें उनका हक दे। एर्दोगान 76वीं UN जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने यमन से हूसियों के ड्रोन्स और कश्तियों के जरिए हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। बताया गया कि 3 ड्रोन्स को खमीस मुशैद के करीब मार गिराया गया। इसके अलावा 2 कश्तियों के जरिए भी हमले की कोशिश की गई। इन कश्तियों को हुदैदा बंदरगाह के करीब तबाह किया गया। हूसियों के इस तरह के हमलों में हालिया दिनों में इजाफा हुआ है। ईरानी फ्यूल टैंकर्स का एक और ग्रुप लेबनान पहुंचा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान इस तरह की सप्लाई के जरिए आलमी पाबंदियों को तोड़ रहा है। इस सप्लाई में हिजबुल्लाह ने अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से लेबनान में हिजबुल्लाह के मकाम में इजाफा हुआ। अल मयादीन टेलीविजन चैनल ने बताया कि सीरिया सरहद से होते हुए ये फ्यूल टैंकर्स लेबनान पहुंचे। पाकिस्तान ने तालिबान के ताल्लुक से दुनिया को एक पैगाम दिया है कि वो नए हुक्मरानों से बातचीत करे और हकीकत पसंद बने। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कई मरतबा ऐसा ही बयान दिया था। जनरल असम्बली के मौके पर कुरैशी ने कहा कि अगर तालिबान को तस्लीम किया जाता है तो तालिबान उम्मीदें पूरी करेंगे। इंडिया और ईरान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। इंडिया और ईरान दोनों अफगानिस्तान के ताल्लुक से एक जैसा अप्रोच रखते हैं। दोनों मुल्क अफगानिस्तान में गैर मुल्की दखल अंदाजी के खिलाफ हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। फ्रांस और अमेरिका ने पिछले हफ्ते पैदा तनाव को दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट की वजह से ये तनाव पैदा हुआ था। इस समझौते के मुताबिक, जिसे ऑकस पैक्ट का नाम दिया गया है, अमेरिका और बरतानिया न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। लेकिन इस समझौते से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कई बिलियन डॉलर्स का एक समझौता मुतासर हुआ है। फ्रांस के सदर ने अमेरिकी सदर से 30 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की और इस मसले का हल तलाश करने की कोशिशों का जायजा लिया। अमेरिका ने यह बात मानी कि सूरत हाल से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता था। फ्रांस ने इस बात से इत्तेफाक किया कि अपने सफ़ीर को वाशिंगटन भेज दिया जाएगा। इस तनाज़े की वजह से फ्रांस ने अमेरिका और बरतानिया से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। इंतहाई एहतियात से लिखे गए एक बयान में दोनों हुकूमतों ने कहा कि सदर बाइडन और सदर मैक्रोन एक तफसीली सलाह मशवरे का अमल शुरू करेंगे, जिसका मकसद एतमाद पैदा करना है। दोनों लीडर्स के दरमियान अगले महीने यूरोप में मुलाकात होने वाली है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के साथ हालिया समझौते में इंडिया या जापान को शामिल करने के इम्कान को रद्द कर दिया है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इंडिया पैसिफिक के इलाके में 21वीं सदी के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस इत्तेहाद को मजबूत किया जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने अपनी रोजाना की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पिछले हफ्ते जिस समझौते का ऐलान किया गया उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। बात कोविड की। इंडिया में 31,932 नए कोविड केसेस पाए गए हैं। ये एक दिन पहले के मुकाबले में 18% ज्यादा केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान 282 जानें गईं। मरकजी वजारत सेहत ने ये बात बताई। एक्टिव केसेस घटकर 3,01,640 हो गए हैं। ये 187 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। केरला में सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत में 29,675 केस रिकॉर्ड किए गए और 142 मौतें हुई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 83 करोड़ 49 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से निपटने की कोशिशों के लिए मरकजी हुकूमत की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिमार्क किया कि इंडिया ने जो किया है वो किसी और मुल्क ने नहीं किया है। जस्टिस MR शाह ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद इंडिया ने गैर मामूली काम किया है। मरकजी हुकूमत ने फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। यह एनकाउंटर चारशंबे की रात कशवा जिले में शुरू हुआ। मारे गए मिलिटेंट की पहचान इनायत अशरफ डार की हैसियत से की गई है। इस दौरान उड़ी सेक्टर में 3 दरअंदाजों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रामपुर सेक्टर में ये झड़प हुई। इस मकाम से हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद हुई। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था।
महाराष्ट्र में मुंबई के करीब 29 लोगों ने 9 महीने तक एक 15 साल की बच्ची का गैंग रेप किया। ये मामला जुमेरात को सामने आया। मुलजिमीन में 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया कि जनवरी में इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसका रेप किया और एक वीडियो बनाया जिसका इस्तेमाल दूसरे मुलजिमीन ने, जो इस लड़के के दोस्त थे, ब्लैकमेलिंग के लिए किया और उसका गैंग रेप किया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दत्तात्रेय कराडे ने यह बात बताई। आखिरकार लड़की की शिकायत पर 24 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के दावों और अमल में तजाद है। जनरल असेंबली से शाह सलमान का खिताब, कहा यमन में मुस्तकिल अमन चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ राब्ते में हैं। ईरानी तर्जुमान ने किया इकरार, वियना बातचीत जल्द शुरू करने का इशारा। हूसियों के ड्रोन्स और कश्तियों को तबाह कर दिया गया, सऊदी इत्तेहाद ने किया दावा। ईरान से मजीद फ्यूल टैंकर्स लबनान पहुंचे, आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी। मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, इंडियन कम्युनिटी ने किया जबरदस्त इस्तकबाल। जुमे को बाइडेन से मुलाकात, क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में G4 मुल्कों की मीटिंग, सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार पर दिया जोर। फ्रांस और अमेरिका ने किया तनाव दूर करने से इत्तेफाक, मैक्रोन की बाइडेन से 30 मिनट बातचीत। इंडिया में 32,000 नए कोविड केस, फेस्टिवल सीजन से पहले हुकूमत ने अलर्ट जारी किया। शोपियान एनकाउंटर में मिलिटेंट हलाक, उड़ी में 3 दरअंदाजों को ढेर कर दिया गया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।